حسن خمینی کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ امریکہ کے اندر آپ کو ایک مایوسی نظر آ رہی ہے اور مبینہ طور پر وہ ایسا ہی منصوبہ جیسا کہ جاپان کے اندر بنایا گیا تھا اب ویسے ایران سے متعلق بنانے کی باتیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ یہ خبر کیا ہے، ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے، اور سب سے بڑی مشکل ممکنہ طور پر پاکستان کے لیے آ سکتی ہے، کیونکہ سعودی عرب نے اب ٹھان لیا ہے، کیونکہ پاکستان کو اب بلانا ہے۔ معاملات آپ کو کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تمام تر چیزیں آج کے اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 9 مارچ 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تیزی کے ساتھ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اپڈیٹس آ رہی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کو اپنا ایک نیا سپریم لیڈر جو ہے وہ مل گیا ہے، اور شہید سعید علی خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو منتخب کیا گیا ہے۔ اور تقریباً ویسے تو جو پیٹرن ہے ایران کی اپنے آئینی اور قانونی طریقہ کار کا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی سپریم لیڈر کا انتخاب ہونے کے لیے 59 ووٹ جو ہیں، 59 ووٹ ہیں، یہ کم از کم لازمی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایران کے سرکاری میڈیا کی طرف سے ووٹوں کی تعداد، صحیح تعداد جو ہے وہ تو نہیں بتائی گئی، البتہ یہ ضرور کہا گیا کہ میجورٹی اور اکثریت سے جو ہے وہ مجتبیٰ خامنائی کا انتخاب کیا گیا۔ اور اس فہرست کے اندر جو نامور شخصیات تھیں، ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پھر حسن خمینی کا جو چیپٹر ہے ان کو بھی میں کھولتا ہوں کہ وہ کس حد تک ممکنہ طور کے اوپر عالمی طاقتوں کے لیے قابل قبول ہو سکتے تھے۔ اس حوالے سے جو شخصیات ہمارے سامنے آ رہی، ایک تو یہ ہے کہ علی رضا عارفی، ان کے بارے میں نام جو ہے وہ پہلے گردش کر رہا تھا، ان کو بنایا جا سکتا ہے۔ صادق لاریجانی، یہ سابق چیف جسٹس رہے ہیں اور علی لاریجانی کے سسر بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ غلام حسین محسنی، یہ موجودہ چیف جسٹس ہیں، ان کا نام بھی زیر گردش تھا۔ حسن روحانی، سابق صدر ایران کے جو رہے، ان کا نام بھی سامنے آ رہا تھا، اور یہ بھی ایک آئیڈیل مانے جاتے ہیں عالمی طاقتوں کے۔ اور حسن خمینی، آیت اللہ خمینی کے پوتے، ان کا نام، اور محمد مہدی ان کا نام، اور دیگر جیسے حسن نوری ہمدانی اور محسن عراقی، یہ زیر بحث ہے۔ یہ وہ شخصیات تھیں جو اس دوڑ کے اندر تھے، لیکن ایران کی جو خبرگان جو رہبر کا انتخاب کرتی ہے، سپریم لیڈر کا انتخاب کرتی ہے، انہوں نے مجتبیٰ خامنائی کو زیادہ اکثریت سے، میجورٹی سے، ایران کے نئے سپریم لیڈر کے طور کے اوپر ان کا انتخاب کر لیا ہے۔ میں مجتبیٰ خمینی کے چیپٹر کے اوپر میں ضرور آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بہت کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ بھی میں تیزی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ 30 سے زائد جو آئل ڈیپوز سے اسرائیل کی طرف سے تہران کے اندر وہاں پر بمباری، شدید قسم کی بمباری کی گئی۔ امریکہ ہی کے میڈیا آؤٹ لیٹ جو کہ آن لائن ہے، ایکسیوس، اس کے اندر یہ خبر گردش کی کہ امریکہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اسرائیل کے ساتھ کہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو حملے کی اجازت دی تھی، لیکن اس حد تک شدید حملے کی اجازت ہم نے نہیں دی تھی کہ آپ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ جو کارروائی ہے یہ کریں۔ تو ایک نوک جھونک والا جو معاملہ ہے دونوں کے درمیان یہ ہوا ہے اس حملے کو لے کر، اور اس حوالے سے لیکن آپ یہ کہیں کہ کوئی بہت بڑی اختلافات ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اسرائیلی میڈیا ہی کے بقول ٹرمپ اور نیتن یاہو نے اس بات کے پر اتفاق کیا ہے کہ اگر ہم نے ایران کے اوپر جنگ بندی سے فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ہم ایک فارمولے کے پر اتفاق کر لیں، اور اسی کے بعد جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آئے گا، یعنی جنگ بندی کی طرف جائیں گے۔ نئے سپریم لیڈر جو مجتبیٰ خامنائی ہیں، ان کے انتخاب کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں مجتبیٰ خامنائی ایکسیپٹ نہیں ہیں، اور اب جب وہ ان کا انتخاب کر لیا گیا اور صحافی کی طرف سے ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اب آپ کا جواب کیا ہوگا، ایران نے تو اپنا سلیکٹ کر لیا سپریم لیڈر، تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن امریکہ ہی ٹرمپ کے نزدیک ہی جو ان کے ایک قریب سمجھے جانے والے سینیٹر ہیں لنڈزے گراہم، ان کی طرف سے مجتبیٰ خامنائی کو دھمکی دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جن الفاظ کا استعمال کیا کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جیسا کہ ان کے والد کا ہوا، یعنی کہ یہ جو سیدھی سیدھی دھمکی ہے، اس کے اوپر چین کی طرف سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی طرف سے بڑا ایک کیٹیگوریکلی بیان سامنے آیا ہے، اور پاکستان کی میڈیا آؤٹ لیٹ کے اندر بھی یہ نشر ہوا ہے، بالخصوص دنیا نیوز ویب سائٹ کے اندر، کہ چین کی ایران کے نئے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت۔ یہ چین کی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چین جو ہے یہ ایران کی خود مختاری کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور ایران کے اندرونی معاملات کے اوپر کسی کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایران نے اپنے ایک سپریم لیڈر کا جو انتخاب ہے وہ آئینی قانونی طریقے سے کیا ہے، اور یہ اس کا پورا حق ہے جس کو اس نے استعمال کیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ضمن میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا ہوا چلوں کہ یہ باتیں بھی بہت سی ہو رہی ہیں کہ بار بار رشیا کا نام آ رہا ہے کہ رشیا کی خفیہ ایجنسی جو ہے وہ ایران کی مدد کر رہی ہے، کہ امریکی تنصیبات کہاں پر ہیں، کس جگہ کے اوپر ہیں۔ حالانکہ بہت پہلے ہی ایران اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کے بعد ہی ہم نے یہ منظر دیکھ لیا تھا کہ ایران نے تیزی کے ساتھ شفٹ کیا ہے امریکی سیٹلائٹ سے چائنا کے سیٹلائٹ بیڈو والی سیٹلائٹ پر۔ تو جب چائنا ہی کی سیٹلائٹ استعمال ہو رہی ہے تو پھر رشیا کا نام کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے، اس میں بہت سے جو تجزیہ کار ہیں، مبصرین، وہ اپنی آراء لکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ممکنہ طور کے پر سپٹمبر میں
ट्रंप ने एक मुलाकात करनी है चाइना के सदर शी जिनपिंग से, और उससे पहले तक वो नहीं चाहते कि इस मुलाकात के माहौल को किसी तनाज़े की नज़र किया जा सके या चीन की क़यादत का नाम लिया जा सके, इसीलिए वो प्यूटन का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं और प्यूटन के ऊपर नाम डाल रहे हैं। हालांकि ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि ईरान जो अभी की सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहा है, तमाम तर सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है, वो तो चाइना की है, लेकिन चाइना का नाम नहीं लिया जा रहा। और इसकी एक और वजह यह भी है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, वांग ज़ी की तरफ से भी कहा गया कि जिसने शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनसे मुलाकात से पहले अपने तमाम तर तनाज़ात और ये मामलात ख़त्े के जो है इनको हल करके आए। यानी वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि जो आपने जंगें छिड़ी हुई हैं ये पहले ख़त्म करके आएँ, और इससे बेहतर यही है कि उसी सूरत में आप शी जिनपिंग के साथ मुलाकात भी करें। तो इसीलिए शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले इस तरह का माहौल नहीं लगाया जा रहा, ना ही चाइना के ऊपर इल्ज़ाम जो है वो डाला जा रहा है। हालांकि बहुत से तज्ज़ियाकार, बिलख़ुसूस भारत के जो एक्सपर्ट हैं परवीन सानी, उन्होंने भी इसी सवाल को इसी तरह से एड्रेस किया कि ये इसके अंदर कोई इबाहम है ही नहीं है, ये तो चीन खुलकर अपनी जो सैटेलाइट सर्विसेज है ये ईरान को फराहम कर रहा है, तभी इतने एक्यूरेटली एग्जैक्टली जो निशाने हैं ईरान वो लगा रहा है। बहरहाल अब वापस आ जाते हैं कुछ जो मज़ीद जो अपडेट्स हैं उनके ऊपर, फिर मुश्तबा खुमैनी वाले चैप्टर के ऊपर हम आ जाएंगे। ईरान का एक जजीरा है, और जापान वाले मनसूबे से मुतालिक भी मैं बात आपके सामने रखता हूँ। ईरान का एक जजीरा है, खर्क जजीरा इस हवाले से कहा जाता है, और इससे मुतालिक ये कहा जाता है, ये आगे खबर, खर्क आइलैंड ये जजीरा है, और ये खलीज फारस में ईरान के साहिल से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा जजीरा है, जो ईरान के सबसे अहम तेल बरामदगी की टर्मिनल है। यहाँ पर अब एक अमेरिका मुमकिन तौर के पर मनसूबा बनाया जा रहा है कि अगर हम पूरे ईरान के ऊपर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते तो हम इस जजीरे के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लें, और ये भी ख्वाहिश है उसी सेनेटर लिंडज़े ग्राहम की। और अगर हम ऐसा कर लेंगे तो दुनिया की 30 से 31% जो ऑयल की मार्केट है उसके ऊपर अमेरिका की अजारादारी कायम हो जाएगी, और हमें यहाँ पर ऐसा करना चाहिए, अपनी ज़मीनी जो फोर्स है इसको उतारना चाहिए। एक ये भी मनसूबा गर्दिश कर रहा है। फिर इसके अलावा अमेरिका के जो सहाफ़ी हैं टकर कार्लसन, जो इन दिनों आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका की डीप स्टेट या अमेरिका की मौजूदा हुकूमत के बड़े खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि अमेरिका के अंदर कुछ फैसलों के ऊपर गौर किया जा रहा है। ये उनका अब दावा है। अब इसके लिए, इसकी तस्दीक के लिए हमारे पास कुछ ऐसी मुस्तरद मालूमात तो नहीं है, लेकिन उनका दावा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो अपने दावे के अंदर ये कहते हैं कि अमेरिका चूँकि ये चाहता है कि वो ज़मीनी फ़ौज उतारे ईरान के अंदर, क्योंकि उसको पूरा कंट्रोल ईरान का हासिल करना है। अमेरिका ये भी जानता है कि ज़मीनी फ़ौज उतारना बहुत मुश्किल है, ये नामुमकिन है कि हम ज़मीनी फ़ौज उतार कर हासिल कर लें, क्योंकि ईरान का जोग्राफिया इंतहाई पेचीदा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए अब कुछ तो दिखाना है ना, कुछ फ़तह तो दिखानी है। तो उस फ़तह को दिखाने के लिए मुमकिन है कि जापान जैसा मनसूबा बनाया जा सकता है कि ईरान के किसी एक शहर के अंदर इंतहाई खौफनाक किस्म की जो टेक्नोलॉजी या जोहरी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अमेरिका का जो सहाफ़ी है टकर कार्लसन ये दावा कर रहा है, और इसी ने यह दावा किया था कि सऊदी अरब व कतर के अंदर कुछ ऐसे मोसाद के एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं जो मकामी सतह के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर बदमनी के मनसूबे बना रहे, ताकि इल्ज़ाम जो है वो ईरान के ऊपर आयद किया जा सके, और फिर ये जो ममालिक हैं ये ईरान के साथ बरह रास्त जंग के अंदर आ सकें। ये भी उसी सहाफ़ी की तरफ से दावा किया गया था, और अब यही वो सहाफ़ी है जो ये दावा कर रहा है कि अमेरिका थोड़ा सा इस किस्म का जो मनसूबा है वो भी बनाया जा रहा है। अभी होता है नहीं होता, और अमेरिका के ऑफिशियल हुकाम इसकी तस्दीक करते हैं नहीं करते, बहरहाल ये तो बयाना डिटेल्स बाकी है, लेकिन अमेरिका के सहाफ़ी की तरफ से ये जो है ये दावा किया गया। अब आ जाइए इस खबर के ऊपर, मुश्तबा खुमैनी की खबर के ऊपर आ जाइए, फिर पाकिस्तान के चैप्टर के ऊपर भी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान किस मुश्किल के अंदर आ सकता है, और जिस दिफाई माहदे के ऊपर भंगड़े डाले गए थे, लगता अब ऐसे है कि वो अब गले का तोक भी बन सकता है। कैसे, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। देखिए कि जो मुश्तबा खुमैनी है ईरान के अंदर, मुश्तबा खुमैनी और हसन रूहानी, इन दोनों को एक साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में ये तासुर है कि ये एक इस्लाह पसंद माने जाते हैं, और ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि इनके रवैये के अंदर, इनकी पॉलिसीज़ के अंदर एक लचक है। ये चाहते हैं, यानी इनका मंसूबा ये होता है कि हमें दीगर किसी मामलात के अंदर, तनाज़ात के अंदर नहीं पड़ना चाहिए, हमें फ़कत ईरान की हद तक फ़ोकस होना चाहिए, और हमें मुज़ाकरात करने चाहिए मगरबी दुनिया के साथ, अमेरिका के साथ हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, और मुज़ाकरात ही के ज़रिए हम अपने मुल्क से जो पाबंदियाँ हैं ये उठवा लें। और बिल्कुल हमें जिस हद तक, यानी अगर कुछ वहाँ से डिमांड आ रही है, 70% डिमांड आ रही है, तो अगर हम 70% उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो 25 से 30% जो है उनकी शराइत को मान लें, और मामले को हम आगे खुश उसलूबी से लेकर चलें। ये इनका नज़रिया है। और इस हवाले से आपको पता है कि
अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी क्लैरिटी है, वो ये कि ये वलायत फ़क़ीह के निज़ाम को मानते हैं जो ईरान का चला है। ऐसा नहीं है कि ये उस निज़ाम के ख़त्म करने के कायल हैं, नहीं। उसी निज़ाम के अंदर रहकर ये महदूद हो जाना चाहते हैं ईरान के अंदर। आपको पता है कि जब अमेरिका के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे तो उस वक़्त जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइलों की जहाँ तक बात थी, दीगर चीज़ों की बात थी, तो वहाँ पर ये चीज़ें भी बात थी कि आप जो ख़ित्ते की तंज़ीमें हैं, आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो गज़ा के अंदर है, जो लबनान के अंदर है, जो यमन के अंदर है, आप इन तंज़ीमों से भी हाथ उठाएँगे। ये आपको पीछे हटना पड़ेगा। तो ईरान की जो क़यादत थी, उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा तो हम नहीं करेंगे, इससे पीछे हटने के लिए, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई का एक जो वायरल बयान था वो आपके सामने है, जो क्लिप भी, उसके अंदर भी उन्होंने वाज़ेह किया था कि ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी शख्स की मदद करें तो उसका मज़हब मसलक देखें। हम बिना किसी ऐसे मामलात के, उसके रोक टोक के, चाहे वो गज़ा के हैं, वहाँ पर अक्सरियत अगर अहले सुन्नत की है तो हम उन्हें भी सपोर्ट करेंगे, लेबनान के अंदर है तो हम उन्हें भी सपोर्ट करेंगे। तो ये अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि आपने इन तंज़ीमों से हाथ उठाना है, लेकिन इनकार कर दिया गया था। अब ये जो शख्सियात हैं, इनसे मुतल्लिक इस मामले के ऊपर लचक दिखाई जा सकती थी, और ये चाहते हैं ऐसा कि ठीक है, हमें इन चीज़ों से निकल जाना चाहिए, और हमें जो है ना वो इस मामले के ऊपर कम से कम जो है वो एग्री हो जाना चाहिए। और यही नुक्ता नज़र जवाद ज़रीफ़ का भी है, यही नुक्ता नज़र हसन रूहानी का भी है, और यही नुक्ता नज़र मुमकिन तौर के ऊपर हसन खुमैनी साहब का भी है, गो कि उन्होंने मुज्तबा ख़ामनेई को सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी है। और मुज्तबा खुमैनी इस वक्त जो उनका स्टेटस है वो ईरान के रहबर कबीर हैं इमाम खुमैनी, उनका जो हरम है, उनकी वो तमाम तर जो देखभाल हिफाजत है वो इन्हीं के ज़िम्मे है। तो बहरहाल ये बताया जा रहा था कि मुमकिन तौर के ऊपर जो हसन खुमैनी है ये किसी हद तक एक्सेप्टेबल हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मुज्तबा ख़ामनेई, लेकिन मुज्तबा ख़ामनेई को ईरान ने सेलेक्ट करके ये बता दिया है कि वो मुज़ाहमत की पॉलिसी के ऊपर ही गामज़न रहेंगे। तो बहरहाल ये वो चीज़ें, पाकिस्तान के चैप्टर के ऊपर हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के हवाले से ख़बर मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पाकिस्तान ही के मीडिया के अंदर ये ख़बर शाया हुई है सऊदी अरब के ज़राए के हवाले से कि सऊदी अरब ने ईरान को ख़बरदार किया है कि हमले जारी रहे तो सऊदीया अमरीकी अफवाज को ईरान के ख़िलाफ़ अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। बरतानवी ख़बर एजेंसी ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने दी, ताहम हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमरीकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। एक तो ये ख़बर सामने आई है। उसके बाद अमरीका के मुतादिद मीडिया आउटलेट के अंदर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि सऊदी अरब का अब सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, और सऊदी अरब जो है वो ईरान के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है, और उसके लिए पाकिस्तान की खिदमत ली जा सकती है, क्योंकि दोनों ममालिक का एक एग्रीमेंट मौजूद है। अच्छा, ये इन दिनों हुआ क्या है, अगर आप ज़्यादा पेचीदगियों में ना जाएँ, कोई पेड चीज़ों के सब्सक्रिप्शन के वाले से ना जाएँ, तो एक ऐप है, ये अकाउंट है फ्लाइट रेडार 24, उन्होंने भी 2 से 3 ऐसी चीज़ें जो हैं वो शवाहिद की बुनियाद के ऊपर रखी हैं कि कैसे सऊदी अरब की जो फ़ज़ाई हदूद है वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। और इसके अंदर रीफ्यूलिंग, जहाज़ और फाइटर जेट ईरान के ऊपर बमबारी करते हैं, जो रीफ्यूलिंग करते हैं वो सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद में करते हैं। या फिर होता ये है कि एक इज़राइल की ओफ्डा एयरबेस से जहाज़ उड़ता है ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर बमबारी करता है, और वो सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद के अंदर जाता है, वहाँ पर जाकर वो लैंड हो जाता है। और इस किस्म के और बहुत से, ये तो वो सबूत हैं जो हम जैसों के सामने हैं। इसके अलावा और बहुत से सबूत ईरानी हुकाम ये कह रहे हैं कि हम सऊदी अरब के सामने रख चुके हैं कि भाई आपकी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल हो रही है, आपने तो कमिटमेंट की थी कि नहीं होगी, लेकिन ये हो रही है, और उसी की बुनियाद के ऊपर हम आपके जो अड्डे हैं, अमेरिका के अड्डे आपकी सरजमीन के ऊपर, हम उन्हें निशाना बना रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब जो है वो एक मामला जो है उसके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, और वो पाकिस्तान से अब ये डिमांड कर रहा है कि अब आपको इस मामले के ऊपर आना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर गो के इस मामले के ऊपर ज़्यादा हसासियत की वजह से ज़्यादा बात नहीं की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के फैसला साज या जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके अंदर भी एक तशवीश पाई जा रही है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये बड़ा एक मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के अंदरूनी लिहाज से भी। इसके अंदर एक और ख़बर जो आ रही है उसको भी एक तक़वीत दी जा रही है, वो ये कि ये एक डेली पाकिस्तान या दी न्यूज़ के हवाले से ख़बर शाया हो रही है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को तवील अलमुद्दती इक़्तिसादी ताउन की 8 अहम दरख्वास्तें पेश कर दी हैं, जिनमें मौजूदा $5 अरब के ज़खायर को 10 साल तवील मुद्दती सहूलत में तब्दील करना भी शामिल है। और पाकिस्तान ने एक लंबे टाइम के लिए माली मदद और तेल की मद में जो है 5 साल के लिए तकरीबन वो सऊदी अरब से मांगा है, क्योंकि डिफेंस पैक्ट यही था कि पाकिस्तान को मुश्किल वक्त के अंदर जो एनर्जी फैक्टर के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर जो वसाइल हैं, ऑयल हैं, चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान को मिलती रहेंगी। पाकिस्तान बदले में मैन पावर भी दे सकता है अपनी फ़ौज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर है सऊदी अरब से तो फ़ौज नहीं लेगा। तो पाकिस्तान की सऊदी अरब से ये डिमांड थी कि मुश्किल वक्त अगर हमारा आ जाए तो आप हमें जो तेल है, ऑयल है, ये दे सकते हैं, बदले में हम आपके जो दिफा है उसको एश्योर करेंगे। तो बहरहाल ये वो ख़बरें हैं, चीज़ें हैं जो चलती हुई नज़र आ रही हैं, जो बड़ी तफसील के साथ मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।